Good morning, students. Welcome to online class. Today we start chapter 12 Self Sacrifice in Moral Science. In this chapter, we study how we can use our lives to serve this society. To experience true happiness, learn to sacrifice your own pleasures for the sake of somebody else. सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपनी खुशी का त्याग करना होता है। मदर टेरेसा was born in Albania. She came to India with the intention of sharing her knowledge and education the poor. मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। वे अपना ज्ञान बांटने और गरीबों को शिक्षित करने के इरादे से भारत आई थी। But then she decided to give her services to the poorest of the poor, to those who were not useful to anybody else, to those who were dying. जब वे भारत आई तो मदर टेरेसा ने निश्चय किया कि वे सबसे गरीब व्यक्ति जिसकी किसी को आवश्यकता नहीं थी, वे उनके जीवन की रक्षा करेगी जो मर रहे थे और किसी के पास उन लोगों के लिए समय नहीं था। She founded an institute near the Kali Temple in Calcutta for the dying, destitute. People of all religions were welcome to her house. उसने ऐसे बेसहारा गरीब लोगों के लिए कलकत्ता में काली मंदिर के पास एक संस्थान की स्थापना की। मदर टेरेसा के घर में सभी धर्मों के लोगों के लिए स्वागत था। She tried to cure the sick and console the dying. She gathered a band of selfish workers and infused in them her spirit of gentleness and service to others. उसने बीमारों को ठीक करने और मरने वालों के लिए सांत्वना देने का प्रयास किया। उसने निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाया और दूसरों के प्रति सज्जनता और सेवा की भावनाओं को प्रभावित किया। Many international prizes were given to her for her great service. She received huge sum of money as prizes, but she donated all the money to the sick and the dying. उनके इस महान सेवा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। उन्हें इस पुरस्कार के रूप में बड़ी धनराशि मिली, लेकिन उन्होंने सारा पैसा बीमारों और मरने वालों को दान कर दिया। There have always been human beings who have shown the great path of self-sacrifice. हमेशा कई ऐसे इंसान रहे जिन्होंने आत्म बलिदान का मार्ग दिखाया है। During the Second World War, when Adolf Hitler killed many Jews in Poland, there was in one German prison camp a Polish priest called Maxim Kolb. दूसरे विश्व युद्ध के समय जब हिटलर ने पोलैंड में कई यहूदियों को मार दिया था, तो एक जर्मन जेल कैंप में एक पोलिश पादरी था जिसका नाम मैक्सिकन कोल्ब था। It was difficult for the Germans to feed so many prisoners. It was also difficult for them to kill all of them and then dispose of their bodies. So they used to send the gas chamber where they died a horrible death. इतने कैदियों को खाना खिलाना जर्मन सेना के लिए मुश्किल था। उन सभी को मारना और फिर उनके शरीर को समाप्त करना भी उनके लिए एक कठिन काम था। इसीलिए वे उन कैदियों को गैस चैम्बर में भेजते जहां उनकी एक भयानक मौत हो जाती। One day 30 men were chosen at random to be sent to the gas chambers. Among them was a middle-aged man who was crying bitterly.
He did not want to die. एक दिन 30 पुरुषों का ऐसे ही चयन किया गया जिन्हें गैस चेंबर में भेजा जाना था। उनमें से एक बुजुर्ग आयु का आदमी जो फूट फूट के रो रहा था, वह मरना नहीं चाहता था। He wanted to see his family after the war was over. युद्ध समाप्त होने के बाद वह अपने परिवार को देखना चाहता था। Father Maxim Kolb came to the prison guard and said, "This poor man has got a large family who are loving waiting for him. I am single. Please allow me to die in his place." फादर मैक्सिम कॉल्ब जेल परी के पास आए और कहा, इस गरीब व्यक्ति का एक बड़ा परिवार है जो प्यार से उसका इंतज़ार कर रहा है। मैं अकेला हूँ, कृपया मुझे उसके स्थान पर मरने की अनुमति दें। Everybody in the camp was very surprised. Father Kolbe hardly knew the man who was crying. His offer was accepted. Father Kolbe laid down his life for the sake of the other man who was able to go home. शिविर में हर कोई बहुत हैरान था। फादर कोल्बे शायद ही उस आदमी को अच्छे से जानते थे जो रो रहा था। उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया। कोल्बे ने दूसरे आदमी की खातिर अपने जीवन को समाप्त कर दिया जो घर जाने में सक्षम था। सेल्फ सेक्रीफाइस मीन्स गिविंग अप वंस इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ गॉड, कंट्री और अदर। इट इज़ लव दैट प्रॉम्प्ट सेल्फ सेक्रीफाइस। सेल्फ सेक्रीफाइस का मीन्स है कि ईश्वर, देश या अन्य के लिए अपने प्राणों को त्याग करना। लुक एट योर मदर, शी स्पेंड्स द डे लुकिंग आफ्टर योर नीड्स। इवन आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क, शी विल ग्लैडली स्पेंड द नाइट बिसाइड यू बेड व्हेन यू आर सिक। आप अपनी मदर को देखो, वह आपकी ज़रूरतों को देखते हुए पूरा दिन काम करती है। दिन भर की मेहनत के बाद भी जब आप बीमार होते हैं तो वे खुशी से आपके बिस्तर के पास रात बिताती है। लुक एट योर फादर हु गिव्स अप मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज कंपल्सन्स। अपने पिता को देखो जो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवन में कई अवसरों का त्याग करते हैं। These are examples of self-sacrifice which are not proclaimed. The world progresses in moral life because of the lesson from the lives of such heroes whose actions are prompted by love. ये सेल्फ सेक्रीफाइस के उदाहरण हैं जिन्हें घोषित नहीं किया गया है। दुनिया में ऐसे हीरो के जीवन से सबक लेने के कारण नैतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं जिनके कार्यों को प्यार से प्रेरित किया जाता है। Some people in this world sacrifice their lives by action prompted by greed or hate. There are those who get killed when trying to steal or harm others. Those who get into prisons because they try to harm others. This kind of sacrifice is not a virtue. इस दुनिया में कुछ लोग अपने जीवन का बलिदान लालच और नफरत से प्रेरित होकर करते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों की चोरी करने या नुकसान पहुंचाने में मारे जाते हैं। जो लोग जेल में जाते हैं क्योंकि वे दूसरों का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का बलिदान कोई गुण नहीं है। In our moral lives, we must have certain principles and live according to them. हमारा नैतिक जीवन में हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए और उनके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। Those who do not
do wrong despite the opportunities, those who do not accept bribes despite the offer, those who do not their duties despite all the difficulties, they are the heroes of today. जो लोग अवसर के बावजूद गलत काम नहीं करते हैं, जो लोग प्रस्ताव के बाद भी रिश्वत स्वीकार नहीं करते हैं, जो सभी प्रॉब्लम्स के बाद भी कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे आज के हीरो हैं। दे आर द पीपल who are willing to lay down their lives for the sake of their principles, their values of their country. वे ऐसे लोग हैं जो अपने सिद्धांतों, अपने मूल्यों या अपने देश के खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। सेल्फ सेक्रीफाइस कैन बी प्रैक्टिस्ड इन आवर डेली लाइफ, शेयरिंग फूड with somebody who has forgotten to bring his tiffin. स्व बलिदान का हमारे दैनिक जीवन में अभ्यास किया जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन करना जो अपना टिफ़िन लाना भूल गया है। गिविंग अप वंस प्ले टाइम टू हेल्प द वीक इन स्टडीज, गिविंग अप ए पार्ट ऑफ द पॉकेट मनी फॉर सम charitable or noble cause are all example of self sacrifice. पढ़ाई में कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए किसी नाटक को छोड़कर उनकी सहायता करना, धर्मार्थ या महान कार्यों के लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा छोड़ देना सेल्फ सेक्रीफाइस का एग्जाम्पल है। इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिट्स the needy and the helpless, but also gives true happiness to oneself. An animal can think of only fulfill his own desire, but it requires good human qualities to be able to provide benefits to those around you. एक जानवर केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक अच्छे मानवीय गुण की आवश्यकता होती है जो आपके आसपास मानव को बेनिफिट पहुंचा सकती है। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड फॉलो रूल्स टू मेक सेल्फ सेक्रीफाइस टू अदर।